Hello everyone, my name is Girish Kumar Sahu and I welcome you all in this Path IAS Academy YouTube channel. Friends, in this YouTube channel or through this platform, we are presenting a video series or the explanation part of Mains Test Series 2023 exams. Okay, every year in this house of Path IAS Academy, we organize this Mains Test Series. So this year this is very special for you because along with this Mains Test Series, now we are going to see the explanation part also through this YouTube channel. Okay, so in today's session we are going to cover the subject of Geography of Chhattisgarh, and this part was included in the test number 5 which was held in 9th of March 2024. Okay, so what we are going to discuss today, let me tell you that we will see the different answer sheets of the different registered students who performed in this test series or in this paper, particularly in test number 5. Okay, we are going to see the model answer also, so that we can easily improve our performance as you are going to prepare or you are going to appear in this Mains Test Series. Okay, so already if you are the part of Mains Test Series, then it is very good, and if you are not, then we have the registration open for this Mains Test Series. As you can see, already this is running from 24th of February, this is started, and 16th of May it will be concluded. Okay, so registration is open and we have 3 different rounds for this. Round 1 is actually the paper are subject wise papers. Okay, and then round 2 and round 3 are the paper wise paper like in CGPSC mains exams. Okay, total paper 1, paper 2, paper 3 इसके हिसाब से आपका होगा. Okay, so if you are not registered yet, then you can register yourself for a particular round also, or for overall you will get this Mains Test Series papers. Okay, so as you can see, right now the round 1 is about to finish. So if you registered today, then you will get all PDF forms, question papers of this round 1 also, so you can easily avail that. Okay, for more details you can contact at this contact numbers, or you can visit the office of this Path IAS Academy in Civil Lines, Raipur. Okay, so let's see what is included in this paper number 5, test number 5. So we have 3 different parts in this paper number 1. Paper number 5 like भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पार्ट 1 में है, और CGGO पार्ट 1 आपका जो है ये छत्तीसगढ़ का भूगोल, क्योंकि एक और टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 6 जिसमें CGGO का दूसरा जो पोर्शन है वो भी है ना. तो इस पर्टिकुलर पेपर का जो है पार्ट 2 जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल है, और देन हिंदी लैंग्वेज भी इसी में था. तो इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट ओनली, दैट इज CG Geography पार्ट. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस एग्जाम्स. बात करते हैं सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो कि 30 वर्ड लिमिट का होता है. We have number 1, question number 1, that is describe the relief and position of the Neech Ghats in Chhattisgarh. Give a brief description of Mehta Point and Fish Point. Question number 3, give details of the names of the major ranges located in the hills of Churi, Udaipur. Then we have question number 4, what is Parsora and Tiki in Chhattisgarh? Explain. Question number 5 is mention Chintabagu river, and question number 6 is from the point of view of management, the forests have been classified into how many parts by the forest department. Okay, so we have total number of questions 6 into multiplied by 2 marks, so it is of 12 marks questions. Okay, जो कि आपका 30 वर्ड्स के थे. बात करते हैं 4 marks के questions की. So within 60 word limits you have to write the answer. So question number 7 is briefly comment on the extent and characteristics of the Keshkal Valley. Okay, and then number 8, throw light briefly on the hills of Changbakhar Devgarh. Then next, give details of the National Agricultural Development Scheme. And then number 10, explain the situation of infant mortality rate and maternal mortality rate in the state. What has been the status of institutional deliveries
as per National Family Health Survey 2015-16 and 2019-21. Okay, so these are the questions of 4 marks. So total number of questions are 4. So 4 into 4 that is 16 marks का आपका टोटल जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया था. ओके, देन 8 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका वर्ड लिमिट होता है कितना, 100 वर्ड्स लिमिट. सो वी हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ द 8 मार्क्स. ओके, एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ऑफ 8 मार्क्स. एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़, मेंशन द क्रॉप्स सोन and produced in the year 23-24. Okay, then question number 12, mention in detail the forest policy 2001 of Chhattisgarh. Then question number 13, in how many parts has Chhattisgarh state been divided on the basis of climate, explain. Okay, and question number 14, what is the classification of soils of Chhattisgarh on the basis of local names, explain. Okay, so these are the total 4 questions of 8 marks. So we have 32 marks question here also. Okay, एंड देन लास्ट बात करें 15 मार्क्स की, तो चूंकि अलग अलग पार्ट थे इसमें, पॉलिटी भी था, हिंदी लैंग्वेज भी था और आपका जो है सीजी ज्योग्राफी वाला भी पार्ट था इस टेस्ट नंबर 5 में, इसलिए यहाँ पर 15 मार्क्स का हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है 175 वर्ड लिमिट्स में हमने ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. ओके, सो दंडकारण्य के पठार के मुख्य विशेषताएं, दैट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दंडकारण्य प्लेटू, एक्सप्लेन. ओके, सो 15 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी कि ये हो गया आपका टोटल 15 मार्क्स का. तो अगर देखा जाए कि टोटल कितने नंबर्स के इस टेस्ट नंबर 5 में सीजी ज्योग्राफी पूछा गया था, जो कि सीजी ज्योग्राफी का पहला ही पार्ट है. ओके, तो आप यदि देखें सो ये हो गया आपका 12 एंड 16 दैट इज 28, एंड देन आपका 28 प्लस 32 ये आपका हो जाता है 60 मार्क्स. ओके, एंड देन आपका ये यानी कि टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन सीजी ज्योग्राफी से इस टेस्ट नंबर 5 में पूछा गया था. ओके, सो now let's see what are the explanation part, or before that we will discuss about the answer sheets of the different registered students, what they have written. okay, उन्होंने क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि what are the plus and what are the minuses, यानी कि हम कहाँ पे improve कर सकते हैं और उन्होंने कहाँ पर क्या लिखा जिसकी वजह से उनका नंबर कटे हैं और क्या बेहतर हो सकता है. ओके, सो इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एक सिटिंग में कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप मेंस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें. ओके, देखिए ये है पहला सैंपल आंसर शीट. उसके बाद फिर हम अलग अलग लेवल के 3 आंसर शीट्स यहाँ पर देखेंगे और उन्होंने क्या किस प्रकार से आंसर लिखा है उस पर चर्चा करेंगे. ओके, सो in this first sample answer sheet, as you can see that the students have performed well. okay, so 92.5 ये इनको मिला है मार्क्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस जो चेक करने वाले हैं उन्होंने जो इनको फीडबैक दिया है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकें, है ना. ओके, सो यू आर गुड एंड एनालाइज द मॉडल आंसर प्रॉपरली, स्टडी CGGS ओके रेगुलरली. ओके, सो CGGS थोड़ा सा इनका वीक यहाँ पर रहा परफॉर्मेंस जो है, इस वजह से इनको ये कहा गया है कि इंडिया वाला जो पार्ट था इस पार्ट 1 ऑफ दिस पेपर टेस्ट नंबर 5, ओके, वो इनका सही रहा, लेकिन बाकी जो सेक्शंस हैं वो थोड़े से कमजोर रहे होंगे. ठीक है, वैसे ही सैंपल नंबर अगर दूसरा एक आंसर शीट लिया जाए तो यहाँ पर भी लगभग हमको वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है. थोड़ा सा और लेवल यहाँ पे इनका जो है मुझे डाउन लग रहा है यहाँ पे परफॉर्मेंस. तो इनको क्या कहा गया है जरा उस बारे में देखें. ओके, यू आर गुड बट लैंग्वेज पेपर 1 इज द स्कोरिंग एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दैट लैंग्वेज पार्ट. ओके, सो जो तीसरा पोर्शन है यहाँ पर ये इन्होंने कम अटेम्प्ट किया है, इस वजह से इनको जो है ऐसा फीडबैक एक इनको मिला हुआ है ना. फिर एक और सैंपल आंसर शीट हमारे पास है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसमें इनको 115 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं. और ये जो CGG वाला पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सो इसमें भी बेटर परफॉर्मेंस इनका रहा है. ओके, सो ऐसे 3 अलग अलग लेवल के पेपर हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, तो बेहतर है कि इससे हम और काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और इजिली वी कैन एनालाइज द क्वेश्चन answer level. okay, and according to this what are the improvements we can do in the answer writing, ये हम लोग easily understand कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं. पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे और फिर 8 मार्क्स और फिर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं. ओके,
So in 2 marks, let's see the answer of first sample answer sheet. Okay, our question is describe the relief and position of the niche ghats in Chhattisgarh. Okay, so क्या लिखा है इन्होंने देखेंगे, also called Jaspur Pat or Ib Mani Valley. It is the extreme right of Pat region of Chhattisgarh and lies in the Jaspur district, and it is south of Samni Pat. Okay, Samri Pat. It forms a part of south ईस्टर्न स्कोप. ओके, ठीक है, ओके, सॉरी, स्लोप. तो इन्होंने एक मैप भी यहाँ पे बनाया है और मैप में इन्होंने वो नीच घाट को क्या किया है, प्रेजेंट भी किया है ना, शो किया है. ओके, और जो इन्होंने लिखा है उसके हिसाब से एकदम बेसिक कंटेंट तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली, जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर रिलीफ एंड पोजीशन के बारे में आपको पूछा जा रहा था. ओके, ना कि लोकेशन के बारे में. इन्होंने लोकेशन तो लिखा है कि कहाँ पर है या किस नाम से ऑलरेडी उसको जाना जाता था. ओके, बट रिलीफ और पोजीशन की जब वहाँ पे बात आ रही है तो आपको उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन का जो लाइक एवरेज हाइट हो गया, ओके, है ना, वो आपको बताना चाहिए, उसका एरिया आपको बताना चाहिए. ओके, तब ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसमें लिख पाते हैं. ओके, ठीक, अभी हम मॉडल आंसर पर डिस्कशन करेंगे कि क्या उसमें लिखा जा सकता था. और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो प्रेजेंटेशन तो ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर 4 लाइन से यहाँ पे लिखी और उसी के बगल में यहाँ पर एक आपने क्या किया, एक मैप बना दिया. ठीक है, ये जो मैप है ये और बेटर हो सकता था. ठीक है ना, यानी कि आपका जो छत्तीसगढ़ का जो आउटलाइन है इस पर आपको मेहनत करनी चाहिए और एक अच्छा आउटलाइन बनाने की कोशिश करनी चाहिए और आप आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस करें आप. ओके, और ये जो इन्होंने बताया है तो लाइक ऐसा किया जा सकता था कि सिर्फ ये इस तरीके से आपका सरगुजा वाला जो डिवीज़न है उसको अगर और शो कर देते तो और काफ़ी अच्छा हो जाता, या फिर लाइक ये सरगुजा हो गया और फिर ये आपका जशपुर और ये आपका बलरामपुर वाला हिस्सा, तो ये थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाता है. ठीक है, तो ऐसा अगर प्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हैं तो और बेहतर है. और क्या चीज़ें की जा सकती थी, तो यहाँ पर लाइक आप ये किया जा सकता था कि जैसे हम जनरली जैसा आप मैप बनाते हो, डायग्राम बनाते हो थ्योरी के साथ साथ, सो बेटर टू इंक्लूड दिस एरिया और दिस मैप और आउटलाइन जो भी है, ये सब आप एक बॉक्स में क्या कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए लाइक ऐसा. ओके, ऐसा एक बॉक्स बना देने से क्या हो जाता है कि ये एकदम मर्ज या मिक्स्ड फॉर्म में नहीं लगेगा. ठीक है, ये जो है ना आपको सही लगेगा, एक स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर वहां पे मेंटेन होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे, वो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमने जो लिखा है वो क्लीन भी लगे और स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि सामने वाले को यानी कि चेक करने वाले को वो पढ़ के अच्छा भी लगे लाइक. ठीक है, नहीं तो क्या होता है जनरली इस तरीके से मैप बना दिया जाता है और फिर वो ऐसे एक लाइन यहाँ तक चली गई तो दूसरी लाइन यहाँ तक आ गई, फिर तीसरी लाइन यहाँ तक आई, फिर चौथी लाइन जो है इधर ऐसे घुसा दिए, तो ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं होता है देखने में, तो इस चीज को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या आंसर किया देखते हैं जरा. मेहता पॉइंट, ओके, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेहता पॉइंट एंड फिश पॉइंट. अच्छा, एक चीज और जो अच्छी लगी मुझे यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ कि लाइक इन्होंने जैसे लिखा है ना कि अब क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब द रिलीफ एंड पोजीशन ऑफ नीच घाट, लेकिन अच्छी बात इसमें ये रही कि इन्होंने क्या नहीं किया है कि क्वेश्चन को फिर से लिखा नहीं है, आंसर में रिपीट नहीं किया. जनरली क्या एक आदत होती है बच्चों की कि वो क्या करते हैं कि लाइक ये कुछ पूछा हुआ है तो फिर से उसी चीज को मेंशन करेंगे दैट द रिलीफ एंड पोजीशन ऑफ नीच घाट इन छत्तीसगढ़ इज दिस ऐसा. तो वैसा हमको नहीं करना है, ये बिल्कुल सही किया है इन्होंने, जो क्वेश्चन पूछा है वही तो लिखोगे ना आप, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ओके, डायरेक्टली इन्होंने आंसर करना स्टार्ट कर दिया लाइक ऑल्सो कॉल्ड जशपुर पाट, ऐसा टू द पॉइंट, एक आपको एक कंटेंट मिल गया, तुरंत एक कंटेंट देना चालू कर दिया गया. ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन है एंड वी कैन से दैट हाउ टू स्टार्ट दी क्वेश्चन आंसर. ओके, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप इसको लिखा करिए, है ना. चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, और आगे भी सुनते रहिए और पूरे इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा. हर एक लाइन में आपको जो है यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश आपको महसूस होगी. ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन एक ले लेते हैं इसी सैंपल आंसर शीट का. तो इसमें आपका क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेहता पॉइंट एंड फिश पॉइंट. ओके, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है देख सकते हैं. दिस टू आर टूरिस्ट साइट्स इन मैनपाट एरिया ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट. इट इज अ साइट सीइंग पॉइंट एंड विथ वाटरफॉल्स एंड the boundary between
सरगुजा एंड रायगढ़। ओके ठीक है, मेहता पॉइंट मेक्स द बाउंड्री बिटवीन सरगुजा एंड रायगढ़, है ना। तो ये एक बेसिक सा एक आंसर इन्होंने किया है। और जहां तक अगर बात हो रही है मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट, दो चीजें आपको यहां पर लिखनी थी, ठीक है। और इसका क्या करना था, आपको डिस्क्रिप्शन देना था, और वो भी कैसा डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की बात हो रही है। लेकिन यहां पर जो आंसर लिखा गया है एकदम टू द पॉइंट बस उसको लिख दिया गया है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि इतना ज्यादा कंटेंट इनके पास नहीं था मे बी। ओके, और जरूरी नहीं है कि हर आंसर आपके पास हो, है ना। लेकिन उसमें भी ऐसा किया जा सकता है कि कुछ तो हम लिखें लाइक जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड ही, अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है कि हाँ मेरे को नहीं पता तो भी मैं कुछ भी लिख दूं, ठीक है। और फिर से वही चीज कहूंगा कि भैया ये आउटलाइन जो है ना थोड़ा सा और बेटर यहाँ पर हो सकता था। और जैसे फिश पॉइंट मेहता पॉइंट इन्होंने बताया है, तो अगर इतना ही कर देते लाइक ऐसा सरगुजा बना करके उसके अंदर इसको बना देते, यहाँ पे मेन पार्ट लिख दिया होता और ऐसा करके फिर फिश पॉइंट और मेहता पॉइंट, तो फिर और ज्यादा बेटर यहाँ पे हो सकता था, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पे लैक कर रहा है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में मैप के आउटलाइन में थोड़ा सा लैकिंग यहाँ पर है, और इसी वजह से मान के चलिए कि 1 नंबर ही इनको मिल पाया है। ओके, है ना। तो इसका क्या सही आंसर हो सकता है देखेंगे, लेकिन एक आंसर शीट और ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे आंसर शीट में क्या हमको देखने को मिल रहा है, देखिएगा। पहला जो आंसर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो द जशपुर डिस्ट्रिक्ट द पेंड्रा पार्ट is situated on height as compared to Jaspur part, so it is called as Neech Ghat. It is situated in north, okay, ईस्टर्न रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। नहीं, ये कुछ खास कंटेंट यहाँ पर नहीं है ना। एक तो यहाँ पर इन्होंने पेंड्रा पार्ट लिखा हुआ है जो कि गलत है ना। पंड्रा पार्ट ये यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था। तो बेसिक आपका कंटेंट ये पहले के 2 लाइन तो बिल्कुल सही नहीं लग रहे, है ना। ये आपका एक सही है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में ये है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे बताना था, ठीक है। यहाँ पर भी ये पंड्रा पार्ट होगा, ये जो थोड़ा सा क्या हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, टूरिस्ट साइट्स ऑफ मैन पार्ट और मेहता पॉइंट एंड फिश पॉइंट हियर एंड वाटरफॉल एंड ब्यूटीफुल सीन्स व्यूज आर प्रेजेंट। ओके, इट गिव्स अ परफेक्ट एक्सपीरियंस एंड पीस ऑफ नेचर। आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में यदि आप देखें, सॉरी, इसका जो आंसर आप देख रहे हैं, इस आंसर में कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। कोई कंटेंट नहीं है क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि क्या कंटेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने चांस लिया है लाइक कि कुछ लिख दिया जाए वाला, ठीक है। तो एक जनरलाइज्ड आंसर यहां पर इन्होंने किया है, एकदम जनरलाइज्ड आंसर। ओके, क्योंकि ये इतना तो समझ में आ गया कि पॉइंट लिखा हुआ है तो कोई व्यू पॉइंट है लाइक और टूरिस्ट प्लेस है, तो बस वही चीज इन्होंने लिख दी है ताकि कुछ तो मिल जाए, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है, कब किया जाए, जब आपके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, लाइक आपने बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और फिर आपके पास लगता है कि हाँ ये मैंने पहले छोड़ दिया था, अब मैं इसको कर दूं, लिख दूं, समय है, तो बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, ठीक है। तो 0.5 मार्क्स तो यहाँ पे मिल गए हैं, है ना। लेकिन अगर शुरुआत में ही जैसे मुझे नहीं पता है और भी आंसर मुझे करने हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लाइक इस क्वेश्चन का मैं कुछ तो लिख दूं, तो अगर मैं लिख रहा हूं तो वो आप जानते ही हो कि मैं जो लिख रहा हूं वो एग्जैक्ट सही नहीं है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं तो इस वजह से लिख रहे हैं ताकि कुछ तो मिल जाए वाला। तो ये काम आपको बाद में करना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसको लिखने के चक्कर में बाकी के लिए टाइम कम पड़ जाए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लगता है कि ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो पहले तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ओके, और मार्क करके छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, और उसके बाद फिर लास्ट में इसको फिर से अटेम्प्ट करके इसमें जो बन पड़ता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक चीज हो गई, और सीधा मॉडल आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं फिर क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। मॉडल आंसर का मतलब यह है कि हम कंटेंट की बात कर रहे हैं कि क्या कंटेंट हो सकता है इसमें जो यहां पे नहीं रहा, है ना। तो देखिएगा कि बेसिक चीजें हैं, क्योंकि यहां पर क्या पूछा हुआ है, रिलीफ एंड पोजीशन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ओके, देखेंगे। सो इन छत्तीसगढ़ जसपुर पार्ट इज कॉल्ड नीच घाट, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि सीधे पहले ही पॉइंट से बिल्कुल आप सिक्सर मार दें, यानी कि जो पूछ रहा है उसके बारे में बताना चालू कर दें। ओके, तो ये हमने बता दिया कि किसको नीच घाट कहा जाता था, ठीक है। नाउ जसपुर डिस्ट्रिक्ट द एंटायर लैंड नॉर्थ ऑफ मैनी रिवर इज नीच घाट, ठीक है। एक मैनी रिवर जो यहाँ पे आपका मिल रहा है, पहले सैंपल आंसर शीट में हमने इसको देखा भी था, ठीक है। और एक्सपांसन की यहाँ पे बात आ जा रही है, ठीक है। तो पहले हमने बता दिया कि किसको ये कहा जाता है, जसपुर पार्ट को कहा जाता है।
हमने बता दिया कि एक्सपांसन कहाँ से कहाँ तक क्या है, तो बगीचा, जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव तहसील, इसके हिसाब से हमने इसको अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया और डीप में जा करके। फिर एवरेज हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलीफ पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, तो आपको ये बताना ही चाहिए क्योंकि एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंतर्गत आता है ना। तो ये हमने बता दिया कि इतने मीटर की इसकी एवरेज हाइट है, और ऑल्सो नोन एज ईब मैनी वैली, ओके, और क्या यहाँ पे मिनरल मिल रहा है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब आप जब इसको पेपर में प्रेजेंट कर रहे हो तो ये जो आपको करना था वो ये है कि लाइक इतना कंटेंट आपके पास है, तो आपको लगता है कि मैप बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, ओके, सो मस्ट नीडेड, ओके, इफ मैप इज देयर, इफ एनी काइंड ऑफ फ्लो चार्ट और लाइक आउटलाइन वगैरह कुछ है, ठीक है, तो जरूर आपको बनाना ही चाहिए, ओके। सो ये एक अच्छा कंटेंट आपके पास है। तो जब आप पेपर में लिखते हैं, है ना, तो ये लाइक ये आपका इस तरीके से ये जो है क्या है, ये आपका 4 लाइन बना करके ये 3 से 4 लाइन में आपको आंसर करना होता है ना। तो आप क्या करिए कि जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये आप इतने हिस्से में ऐसा लिख लीजिए और इधर स्पेसिफाई कर दीजिए, और यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे बना दीजिए, और बनाने के बाद ऐसा बॉक्स बनाना ना भूलें, ठीक है, ओके। मेक अ बॉक्स लाइक दिस एंड इंक्लूड दैट map or outline inside that box, okay, then it will look proper structure, okay, answer clear, इतनी बात है, ठीक। तो ये आपको अच्छा जो है मार्क्स दे सकता है, क्लियर, ओके। लेट्स डिस्कस दी अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा जा सकता है, लाइक ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे पूछी गई थी, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, आप इसको बुलेट पॉइंट बना दीजिए 1 और 2, और उसके बारे में फिर डिस्क्राइब कर दीजिए जो भी लाइन आपको मालूम है, जिसमें बेसिक चीजें। मेहता पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स मिलेंगे, इसी के लिए ज्यादा ये फेमस है, ठीक है, तो ये आपने बता दिया। और ये कहाँ किसके किसके बीच में बॉर्डर बना रहा है, या बेसिक उसका जो कॉन्टेंट है वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर फिश पॉइंट में आते हैं, तो भी वाटरफॉल बिल्ट ऑन अ माउंटेन ड्रेन एंड लॉट ऑफ फिश आर फाउंड हियर एंड ऑन दिस बेसिस इट इज कॉल्ड द फिश पॉइंट, क्लियर है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अलग से यहाँ पे लिख सकते थे ऊपर में, ठीक है, क्या लाइक दिस पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द मैनपाट रीजन, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड देन उसके बाद फिर एक एक पॉइंट आप यहाँ पे बता देते हैं, है ना। तो ये ऐसा एक आंसर किया जा सकता है जो कि आपके लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड आंसर आपके लिए बन सकता है, ओके। चलिए, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग 4 मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ओके। देखिए, पहला आंसर अगर देखें, क्वेश्चन आपका ये है, ब्रीफली कमेंट ऑन द एक्सटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केशकाल वैली, ओके। सो इसमें क्या आ रहा है जरा देखिएगा। केशकाल वैली प्रेजेंट इन कोंडागांव इज नोन एज द एंट्री पॉइंट ऑफ द बस्तर, ओके, वेरी गुड, एंड इट हैज 12 बेंड्स ऑफ द रोड एंड a famous तेलिन माता टेम्पल एंड लिंगागिरी टेम्पल इज सिचुएटेड हियर, ओके, ठीक है भाई, लिंगागिरी टेम्पल। चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन महानदी एंड गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लावर वैली एंड ओरिजिन पॉइंट रिवर्स लाइक माकड़ी एक्सेट्रा, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो सही है। इस तरीके से इनको यहाँ पर जो है 2 मार्क्स जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन और अच्छा इसमें कंटेंट हो सकता था जो कि रह गया है। एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम लोग, आंसर शीट, जिसमें हम बात कर रहे हैं केशकाल वैली इज सिचुएटेड ऑन कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। चलिए, ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो गया, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स करके इन्होंने एक अलग से ऐसा एक हेडिंग बना दिया है, और उसके अंदर फिर बुलेट पॉइंट बना करके अपना आंसर लिख रहे हैं। इस तरीके का पैटर्न हम फॉलो करते हैं जब हम आंसर लिखते हैं, स्पेशली इन 4 मार्क्स क्वेश्चन आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन यही जब आप लॉन्ग आंसर में जाते हो, लाइक 8 में, 10 में या 15 मार्क्स में, तो पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन का पैराग्राफ वाइज आप लिख दिए, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स आपको बनाने हैं, तो आप उसमें पॉइंट्स बनाइए, तो एक ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन आपके लिए होता है, ओके। चलिए, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड, ओके, डिवाइडर इन्होंने लिखा था, एक्चुअल में जो वर्ड है वो वाटर डिवाइड है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्शन यहाँ पे बनता है, बिटवीन महानदी एंड इंद्रावती
ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, करेक्ट है। नंबर 2, केशकाल वैली इज फेमसली नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स एंड केशकाल वैली कंटेन्स दी साल फॉरेस्ट। ओके, 3 पॉइंट इन्होंने लिखा। चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है केशकाल वैली हैज अ फेमस टेम्पल ऑफ तेलिन माता एंड इट्स वर्शिप्ड बाय ट्रेवलर्स। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक थोड़ा सा जनरलाइज वे में जा करके इन्होंने लिख दिया, जो पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाता है कहीं ना कहीं, है ना, ये अच्छी बात है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर आया। अब इसमें जैसे कि हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो ये देखिए कि इन्होंने मैप कहाँ पे बनाया है। ये जो एक क्वेश्चन के पास यहाँ पर एक इनको दिख रहा था एक स्पेस, तो वहां पे इन्होंने बना तो दिया है, ठीक है, बनाया जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है चेक करने वाले के दिमाग में थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट डाले। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा लाइक लीनियंट होते हैं, तो फिर उन्होंने कोई माइंड नहीं करना है, ठीक है, और वो दे देते हैं आंसर, ठीक है, नंबर दे देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा एक स्पेस बना करके, जितना स्पेस आपको आंसर लिखने के लिए दिया गया है उसी के अंदर इसको अगर बना देते तो ये ज्यादा आपका सही रहता है। ठीक है ना, लाइक ऐसा। क्लियर इतनी बातें? ओके, सो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्पेस यहाँ पर आंसर लिखने के लिए नहीं दिया गया है, तो इसको बेहतर है कि इस तरह प्रेजेंट किया जाए या ड्रॉ किया जाए। क्लियर इतनी बात है? चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया है, 2 सैंपल हमने देख लिया। बात करते हैं मॉडल आंसर के बारे में। ये देखिए, एक्सटेंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केशकाल वैली पूछा हुआ है, तो पहले इसका एक्सटेंड हमने बना दिया यहाँ पर। ओके, ये 2 लाइन्स में, लाइक इट एक्सटेंड्स in the Kondagaon district of Chhattisgarh and it is called the gateway to Bastar, and at this place a person named Kesulu was killed while fighting with a lion, and that is why it is named as केशकाल। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो चीज थी उसका एक्सटेंशन तो हमने बता ही दिया, साथ में उसका एक बैकग्राउंड बता दिया कि क्यों इस जगह का नाम केशकाल पड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसा कि एक क्वेश्चन में हमको दिखा था, एक अलग से हेडिंग बनाया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स करके, और उसके बाद फिर उन्होंने बुलेट पॉइंट्स में आंसर दिए थे। वही सही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो करते हुए ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक कंटेंट यहाँ पर है, लाइक इसको एक्ट्स एज अ वाटर शेड या फिर वाटर डिवाइड हम कह रहे हैं। 12 कर्व्स लोकेटेड इन दिस वैली, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ बेसिन एंड बस्तर प्लेटू। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और वैली इज कॉल्ड द वाटर डिवाइडिंग माउंटेन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, और इसी तरीके से आपको टू द पॉइंट जो पूछा जा रहा है आंसर करना चाहिए, तब एक बेसिक आंसर आपका बनता है। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको लिखा है, इस तरीके से लिखा होगा तो उनको बढ़िया नंबर मिले होंगे। ठीक है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है अभी भी, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर इस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट आपको लानी है अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे ना, तब तक एक प्रेशर नहीं आएगा, एग्जाम का प्रेशर नहीं आएगा, और वो चीजें जरूरी हैं। ठीक है, कि एग्जाम का प्रेशर आप जो है अपने दिमाग में लेकर के आए। ओके, तो थोड़ा सा ये है कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज जो है जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपके पास अवेलेबल हो, तो आराम से घर में ही बैठ जाइए। घर में बैठ करके आप जो है 3 घंटे का प्रॉपर एक टाइम लेकर के, एक स्लॉट लेकर के, जस्ट लाइक इन एग्जाम हॉल, ठीक है, आप वैसे ही परफॉर्म करिए और बैठ करके देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये एक पर्सनल यानी कि सेल्फ मोड में जाकर के किया जा सकता है। ठीक, चलिए, उसके बाद फिर ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग 8 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। ओके, देखें, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़, मेंशन the crops shown and produced in the year 23-24. Okay, so the answer written here is छत्तीसगढ़ इज कॉमनली नोन एज धान का कटोरा। वेरी गुड, ये जो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्शन से आपका पूछा जा रहा है, तो एक बेसिक कुछ टैगलाइंस वगैरह होते हैं, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो लाइक क्वेश्चन से हट के ना हो, थोड़ा सा रिलेटेड हो, लाइक ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंपैक्टफुल आंसर आपका बनता है। एनीवेज, मेन कंटेंट क्या है जरा देखते हैं। पैडी इज मेजर क्रॉप इन खरीफ सीजन व्हाइल ऑयल सीड्स एंड पल्सेस आर सोन इन द रबी सीजन। ओके, मेजर क्रॉप सोन एंड प्रोड्यूस्ड इन 2023-24 आर क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ शोन एरिया। ओके, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में इन्होंने लिखा है, और कौन कौन सा क्रॉप्स है यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, कैश क्रॉप्स के बारे में बता दिया है, और मिलेट्स के वगैरह के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, तो कौन कौन से क्रॉप्स हैं ये इन्होंने जरूर लिखा है। ओके,
और ये कुछ स्पेशल चीज जो रह गया है, मतलब कि मेंशन करना था इनको, बोया गया व उत्पादित फसल, ये दोनों आपको लिखना था। तो इन्होंने केवल और केवल क्रॉप जो है वही बस लिखा है, कितना प्रोड्यूस हुआ ये 23-24 के हिसाब से वो इन्होंने नहीं लिखा है। यानी कि थोड़ा सा इनको इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पढ़ने की जरूरत है, और एग्रीकल्चरल जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने की जरूरत है, जो यहाँ पे ये मिस कर गए हैं। ठीक है, तो चूंकि हाफ पोर्शन जो है इन्होंने काफी अच्छे से लिखा है कि अलग अलग सीजन के हिसाब से बांट के कि क्या क्या है, तो इसलिए लगभग इनको 4.5 मार्क्स जो है इनको मिला हुआ है। ओके, तो इसका मॉडल आंसर यदि हम देखें स्टैंडर्ड, तो हमको क्या यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है, जरा देखेंगे, है ना। एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़, मेंशन द क्रॉप सोन एंड प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 23-24। Agricultural products of Chhattisgarh can be understood in two forms, okay, which include agricultural products on the basis of climate and agricultural products on the basis of use रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो हिसाब से यहाँ पे बांटने की बात हो रही है, एक क्लाइमेट के हिसाब से और ऑन द बेसिस ऑफ यूज। सो खरीफ एंड रबी ये आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड हैं और मेनली ऑब्टेन्ड इन द स्टेट, जो कि एक आंसर में हमको मिला भी है ना। तो इस तरीके से खरीफ और रबी के हिसाब से आप बांट देते हैं। सेम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स, तो इसी को हम दो तरीके से और बांट सकते हैं। Grains, pulses and oilseeds are mainly included in the food crops of the state and sugarcane and cotton are mainly included in the non-food crops। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद फिर एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो यहाँ पे आंसर चालू हो रहा है। लाइक द ग्रेन्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स सोन इन द मैक्सिमम एरिया आर पैडी, मेज एंड ऑयल सीड्स क्रॉप्स, पैडी, मेज, व्हीट, कोदो कुटकी, ग्राम, तिवरा, उड़द, अरहर, सोयाबीन, आपका रामतिल, मस्टर्ड, पीनट्स एंड फ्लैक्सीड रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग आपको लिखा हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा जो है मैक्सिमम सोन है और क्या है। ठीक, और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो भी आपका यहाँ पे बताया गया है कि कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है देखने को मिल रहा है। लाइक अलग अलग बांट दिया गया है, नॉर्थ रीजन और आपका साउथ रीजन या सदर्न डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर आपका बनता है। ये 8 मार्क्स के हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या लिखा जाना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन आया था, जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दंडकारण्य प्लेटू, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ना। सो 15 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आया था जो कि 175 वर्ड्स में आपको लिखना था। क्या यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, इस बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक मैप भी बना हुआ है और दंडकारण्य प्लेटू यहाँ पे बताया गया है। तो ठीक है, थोड़ा सा आउटलाइन पर यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, शुरू से मैं आपको कहते आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लगना चाहिए एक्चुअल। ओके, लग रहा है लेकिन और अच्छा होना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि लिखते हैं तो उतना हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ है जिस पर हम लोग चर्चा करें तो ये एक अलग इम्पैक्ट जो है ना दिमाग में पड़ता है। लाइक ऐसा होता है कि एक अच्छा सुंदर सा मैप अगर दिख गया चेक करने वाले को, तो मे भी इधर कुछ कंटेंट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो, है ना, तो वो थोड़ा सा उसको कंपनसेट कर सकता है। ओके, तो इसलिए बेहतर है कि एक बढ़िया ही आप आउटलाइन बनाइए। ओके, अमीबा पैरामीशियम ना लगे। ठीक है ना, लगे कि हाँ भैया हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा। तो दंडकारण्य प्लेटू इज सिचुएटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, इसकी विशेषताएं हमको बतानी है। ठीक, इट एक्सपांड्स इन सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो टोटल इसका एक्सटेंशन सबसे पहले इन्होंने बता दिया है। ठीक है, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद फिर देखिए फॉर नियरली अबाउट कितना % एरिया ये स्टेट का कवर करता है, ये एक अच्छी चीज़ है बताने के लिए। फिर आपका बात आती है किसके बारे में, फीचर्स के बारे में, है ना। तो फीचर्स इन्होंने जो है एक लिखा है, और फीचर्स के अंदर क्या क्या पॉइंट इन्होंने लिखा है। इट्स हाईएस्ट पीक इज नंदीराज एट 1210 मीटर। ओके, एंड दंडकारण्य प्लेटू कंटेन्स गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, सब्सिडरीज लाइक कोटरी, गुडरा, निभरा एक्सेट्रा आर दी मेन रिवर्स। ठीक है, रिवर के बारे में बता दिया पहले फीचर में। फिर अबूझमाड़ हिल के बारे में इन्होंने बता दिया। फिर खुरसेल वैली बता दिया, है ना। फिर आपका जो है यहाँ पर पौघाट हिल्स के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है भाई, और क्या लिखा है इन्होंने, दंडकारण्य प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स। ओके, अब इन्होंने मिनरल्स के बारे में बताया यहाँ पर। ओके, प्लेटू इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, इट कंटेन्स चित्रकूट वाटरफॉल, ओके, तीरथगढ़ वाटरफॉल एंड कुटुम्बसर केव्स। चलो, एक आपका लाइक टूरिज्म प्लेस के तौर पे भी इन्होंने इंपॉर्टेंस इन्होंने बता दिया है। दंडकारण्य प्लेटू इज नेम टू नेचुरल फ्लोरा एंड
fauna as well as the wildlife. And Indravati Tiger Reserve, Kangar Valley National Park is also famous for the place named Kotmi Sonar which contains crocodile. ओके ये कोटमी सोनार हो जाता है आपका गलत, ठीक है, ये आपका गड़बड़ है, यहाँ पर ये भैंसा दरहा होना चाहिए था, ठीक है, ये कोटमी सोनार आपका जांजगीर चांपा में पड़ता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है फैक्ट में। ओके, बाकी जो एक लिखा है इन्होंने, इसमें थोड़ा सा और प्लस ये किया जा सकता था कि जो इन्होंने लिखा है अगर इसको कैटेगराइज कर देते है ना, लाइक एक हेडिंग बना देते कि हाँ इसमें मिनरल्स फिर डैश करके फिर लाइक सॉइल्स डैश करके एक बना देते है ना, फिर ये आपका टूरिज्म प्लेसेस लाइक ऐसा कुछ एक हेडिंग दे करके, तो सब हेडिंग के साथ यदि हम लोग यहाँ पे लिखते तो इनका आंसर और अच्छा हो सकता था, ठीक है। क्या है कि चेक करने वाले को ना हमको लाइक अच्छा दिखाना है, वही अपना क्या है प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि अगर हम कैटेगरी वाइज इसको बांट देंगे तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट उसको दिख जाएगा, ऊपर से ही दिख जाएगा कि हाँ इसमें ये लिखा होगा, इसमें ये लिखा होगा, ठीक है, उसको जरा समय नहीं लगेगा चेक करने में, ठीक है, और जो चाहिए वो तुरंत उसको मिल भी जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो खुश है तो भैया हम खुश रह पाएंगे, है ना, अच्छे मार्क्स हमको मिल पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मान के चलिए कि कंटेंट वाइज तो बढ़िया है इनका आंसर, लेकिन स्ट्रक्चर जो था इसका उसमें हमको इसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा बांट देना था, ओके, तो ये ज्यादा बेहतर हमको लगता, ठीक। एक दूसरा आंसर शीट हम लोग ले रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए कि इनको भी ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 8 मार्क्स तो मिले हैं इनको क्योंकि कंटेंट के हिसाब से इनको मिले हैं, ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे सीधे सीधे लिख रही है वो ये है कि कंटेंट शायद इनके पास थोड़ा कम था, इस वजह से इन्होंने जो है मैप बनाने में ही पूरा स्पेस ले लिया है ना, ठीक है। ये देखिए ये इतना बड़ा जो है आपका जो है ऐसा मैप बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जिसमें फुल पेज आपको केवल मैप ही नजर आ रहा है, ओके, क्योंकि इससे क्या है ना डायरेक्टली चेक करने वाले के मन में आ ही जाएगा कि भैया इसके पास कम कंटेंट होगा और इसी वजह से इसने भरने के लिए ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे व्यवस्थित तरीके से बनाइए, मैप जो है इस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्लियर थी बातें, ठीक है। एक सिस्टमेटिक लगना चाहिए, एक फुल पेज जैसा यहाँ पर है, ठीक है, इस फुल पेज है, मान लीजिए ये मेरा फुल पेज है, इतना अगर मैं आपके लिए बोलूँ, ठीक है, 15 मार्क्स में लिखना है तो एक छोटा सा ऐसा कॉर्नर पकड़ लीजिए या एक तरीके से इस तरीके से कर लीजिए, इतने में आप बना दीजिए, बाकी फिर इधर आपका ये थ्योरी वाला पार्ट जो है पूरा इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। इतना बड़ा कभी भी मैप नहीं बनाना, आउटलाइन नहीं बनाना, ओके। बाकी जो कंटेंट है इनका और इसमें भी कुछ खास ऐसा मतलब कैटेगरी वाइज इन्होंने नहीं किया है। अच्छा देखिए ये इन्होंने लिखा है स्लोप हो गया, ये आपका रिवर्स हो गए, देन हाईएस्ट पीक हो गया, ये टू द पॉइंट इन्होंने लिख दिया है, स्टेटमेंट लंबा लंबा इन्होंने नहीं बनाया है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है छत्तीसगढ़ का परसेंटेज वाइज और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में, वो दोनों इन्होंने लिखा है। देन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उन्होंने लिख दिया, मतलब हेडिंग बना दिया है, और यही चीज जो मैं अभी बात कर रहा था, और हेडिंग बना करके इन्होंने क्या किया है कि उसके आगे इसको लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट वाइज ये ज्यादा गए हैं, मतलब केवल कंटेंट देने पर इन्होंने मेहनत किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये सही तो है, गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स के हिसाब से आप क्या करिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा थ्योरी टाइप से, यानी कि एक आपका इंट्रोडक्शन वाला एक पार्ट आपको बनाना चाहिए बेसिक, देन उसके बाद फिर जब आप मेन कंटेंट में आते हो तो मेन कंटेंट में भी आप जो है ऐसे सब हेडिंग बना करके और उसमें फिर आप लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बना करके लिख देते हैं, है ना, तब ज्यादा अच्छा रहता है। और फिर कंक्लूजन वाले पॉइंट में आते हो, और कंक्लूजन वाले पॉइंट में भी फिर आप क्या करते हो कि थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में या पैराग्राफ वाइज आप लिखना जो है ज्यादा उचित रहता है। तो वैसा एक स्ट्रक्चर जमाइए 15 मार्क्स का, ओके। सारा पैटर्न एक जैसा नहीं होना चाहिए कि 8 में भी वही, 2 में भी वही, 4 नंबर वाले में भी वही कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कंटेंट वाइज सही है, और ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइक इन्होंने जैसे लास्ट में अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो उसमें उतना फिर टाइम हमारे पास बचता नहीं है, तो फिर यही एक आंसर रहता, यही तरीका रहता है, अप्रोच रहता है कि बस कंटेंट तो हम दे दे कैसे भी करके विद इन द टाइम लिमिट, ओके। तो इस वजह से शायद इन्होंने ऐसा लिखा होगा कि हेडिंग बना दी और बस टू द पॉइंट ऐसा एक एक करके इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो बेहतर क्या होता है ना कि आप 2 मार्क्स वाले और लॉन्ग आंसर जो है 15 मार्क्स वाले उसको पहले अटेम्प्ट कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ओके, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर वाला जो है वो
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो लगेगा, लेकिन अगर आप एकदम श्योर हैं कि मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकता हूं तो बिल्कुल आप पहले 15 मार्क्स वाला पहले बना लो और उसके बाद फिर 2 मार्क्स वाले में आप जाइए, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स वाले में क्या है कि वो कम लिखना है लेकिन बम लिखना है वाला सिस्टम रहता है ना, तो फटाफट बढ़िया जल्दी हो जाएगा, उसमें आप टू द पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। और इसमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जो आप टाइम लेकर के इसको लिख लोगे तो एक साथ पूरे 15 मार्क्स का आप लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उतना टाइम तो आपको लगना है, ठीक है, ओके। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आप बेहतर है कि लॉन्ग आंसर को और फिर शॉर्ट आंसर को, इसको पहले आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर इसमें आइए। क्लियर है, ठीक, बाकी के क्वेश्चंस में, है ना। चलिए, तो अब मॉडल आंसर पर चर्चा कर लेते हैं सीधा कि इन्होंने क्या कैसे लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दंडकारण्य प्ले 2। तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पे 2 लाइन में बना दिया, इसका एक्सटेंशन सबसे पहले हमने बता दिया, कहां पर वो अवेलेबल है, कौन कौन सा एरिया इसमें आता है, ये हमने बता दिया। किसी ने भी इस तरीके से आंसर अभी तक नहीं लिखा था, जो 2 आंसर शीट हम लोगों ने देखा था। जैसे कि यहाँ पर किसी ने भी नहीं लिखा कि इट एक्सटेंड्स टू दी मोहला मानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर डिवीजन एंड दुर्ग डिवीजन, ओके, एंड इट्स मेन फीचर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। तो इसका नाम कहीं मुझे दिखा ही नहीं कि मोहला मानपुर का नाम लिखा हो, दुर्ग डिवीजन का नाम लिखा हो, ठीक है। तो एक थोड़ी सी ये चीज रह गई है, क्योंकि ये आपका मेन फीचर्स ऑफ दंडकारण्य प्ले 2 मतलब कि एक जियोग्राफिकल या फिजिकल डिवीजन के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसका एक्सटेंशन आपको इस तरीके से ही लिखना चाहिए। बाकी ऑल गुड, लाइक ये आपका एरिया और ये परसेंटेज वाइज कितना एरिया है वो आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। फिर ये देखिए कि इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर किया गया है आंसर को, लाइक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सॉइल, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, है ना, ये फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये पूरा मेजर क्रॉप्स, डेमोग्राफिक, मिनरल्स, ओके, टूरिज्म, प्लेटू, बेसिन, प्लेन, हिली एरिया, कल्चर, क्राफ्टमैनशिप, ये देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जब आप लिख देते हो तो ये एकदम से मतलब दिख जाता है कि हाँ यार, इसने मतलब 8-10 पॉइंट तो लिख ही लिए हैं, ठीक है, ऐसे 8-10 कंटेंट से भी ज्यादा लिख दिए हैं, ऐसा। तो ये फिर आपका क्या हो जाता है कि एकदम से मतलब सामने दिख जाएगा और ऐसे में फिर कंप्लीट आंसर आपको जो है लगेगा कि हाँ मैंने पूरा कंप्लीट आंसर दिया है और इसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर भी मिलेंगे, काटने वाली सवाल ही नहीं रहेगी। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर करिए और काम करिए इस पर, अपने प्रेजेंटेशन पर, अपने स्ट्रक्चर पर, और किस तरीके से बेहतर आप आंसर प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर शीट में, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड और भी टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग टेस्ट में पूछे गए हैं इस मेंस टेस्ट सीरीज 2023 के पाथ आईएएस एकेडमी के तहत जो चल रही हैं, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लगातार देते आ रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो आगे भी ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है मेंस का या कोई सब्जेक्ट है जिस पर आप चाहते हैं कि आपका एक जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिले, ठीक है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो भाई जरूर दिल खोल के लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि ये आपके फायदे का चैनल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और मेंस की तैयारी और जोर शोर से चलनी चाहिए, ठीक है, इसमें देरी ना बरतें और डेली आप आंसर राइटिंग करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच।